Good day, students. Firstly, I congratulate you all as you have entered the board class. Students, as you know, we are still amid the pandemic era, but we have to complete our syllabus. So today, we'll start with our chemistry first chapter, that is chemical reactions and equation. So what is chemical reaction? Chemical reaction, it is a process in which one or more than one substance they combine with each other and form a new substances. मीन्स दो सब्सटेंस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलके बेटे जब नए सब्सटेंसेस बनाते हैं दैट इज़ नोन एज द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड्स. हमने फिजिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस किए हैं तो उसी तरह से हम दिस इज़ जस्ट लाइक अ केमिकल चेंज. इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय द फिजिकल मेथड्स. So chemical reactions involves change in state. State means solid, liquid, gas. These are the states. Then change in color. Color can be changed from the reactants to the products. Change in temperature means firstly the temperature will not be more, but after the products they are formed, the change in temperature is there. And the evolution of gas. Okay, so physical methods may which are written on the right hand side, like the magnetism, filtration, centrifugations, these are the physical methods, is they are not applied to reverse the chemical reactions. And involves means chemical reaction involves means how can you know that chemical reaction has taken place? By these four steps: change in state, change in color, change in temperature, and the evolution of gas. And one more it is there, that is the formation of precipitates. So I'll also tell you what are the precipitates. Now what is chemical equation? Chemical equation is the symbolic representation कि when the chemical reaction it is represented in the form of the symbols and the formulas. Symbols, as you see here, magnesium ribbon bond in air. Air means oxygen. It will give rise to the magnesium oxide. Rather we have to write in the line, or when on the down hand side you can see it is written Mg plus O2 give rise to MgO. Means magnesium can be represented in the way of Mg. This is the symbol of the magnesium. O2 is the symbol of the oxygen and magnesium oxide is the formula. फॉर्मूला किसका होता है बेटे? जो रिएक्ट प्रोडक्ट्स वाली साइड फॉर्म होता है, मीन्स कंपाउंड. तुमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स किए नाइन्थ में. सो एलिमेंट्स वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एज द मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन. दीज आर द एलिमेंट्स. बट जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं दे आर फॉर्मिंग द कंपाउंड. कंपाउंड का क्या होगा? फॉर्मूला. और एलिमेंट्स के क्या होंगे? सिम्बल्स. फाइन. सो दीज आर द सिम्बल्स एंड द फॉर्मूलाज. और जब किसी भी रिएक्शन को हम सिम्बल्स या फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज़ नोन एज द केमिकल इक्वेशन. हमने पीछे किया था चेंज इन स्टेट में, चेंज इन टेम्परेचर में, चेंज इन कलर में, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ गैस. प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं बेटा? जब हम रिएक्शन करते हैं कई बार क्या होता है कि वाटर जो है ऊपर रह जाता है, नीचे सॉलिड मटेरियल रहता है. ठीक है. सो दैट सॉलिड मटेरियल विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब दिस इज़ नोन एज द प्रेसिपिटेट्स. सो इन पांचों चीज़ों से हमें पता लगता है, मीन्स अगर कोई भी चीज़ होती है इन पांचों में से इट मीन्स द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. So that is the chemical equation and chemical reaction. And on the right hand side it is written the SL, means these are the symbols which are sometimes are written along with the chemical equation. Means these represent the state of the reaction. Means magnesium किस form में है? Solid में है, liquid में है, gas में है. गैस को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि वेदर जब एरो हम ऊपर की ओर लगा देंगे इट मीन्स द गैस फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस, और जब हम एरो नीचे की ओर लगाएंगे इट मीन्स द प्रेसिपिटेशन इज देयर, क्योंकि गैस हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है और प्रेसिपिटेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होते हैं. नाउ रिएक्शन तो होती है बट वी हैव टू बैलेंस द रिएक्शन. ये हम जब आराम से करेंगे तब भी समझ में आएगा, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू क्या होता है बेटा बैलेंस करना रिएक्शन को, कि सेम एटम्स जितने रिएक्टेंट्स वाली साइड है उतने ही प्रोडक्ट्स वाली साइड होनी चाहिए. सो हेयर इज अ रिएक्शन मीन्स आयरन व्हेन रिएक्ट विद द वाटर इट विल गिव द आयरन ऑक्साइड.
सो यहाँ पे क्या है बेटे, हमने एक बॉक्स बनाया, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिख लिए। आयरन के रिएक्टेंट वाली साइड 1 ही थे पहले, ठीक है, और इधर तुम देख रहे हो प्रोडक्ट्स वाली साइड 3 है, तो हमें उसको बैलेंस करना है, दोनों साइड पे 3 करना है। तो जो प्रोडक्ट्स वाली साइड में 3 है, हम रिएक्टेंट वाली साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके आगे 3 लग जाएगा। सेम वे अगर हम वाटर में देखते हैं, इन द वाटर ऑन द रिएक्टेंट साइड्स द हाइड्रोजन हैव 2 एटम्स, ठीक है। आई थिंक ये सबको पता होगा, तुमने एटॉमिसिटी की है। और अगर हम प्रोडक्ट्स वाली साइड देखते हैं, इधर इधर भी क्या है, 2 एटम्स, तो हमने दोनों को 8 कैसे करना है, क्योंकि बैलेंस करना है। उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स वाली साइड 4 है और रिएक्टेंट वाली साइड नहीं है, एक ही है, सो हमें उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। जो इक्वेशन, जो पहले इक्वेशन लिखी दैट इज़ द स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि जब रिएक्शन बैलेंस नहीं होती उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बोल देते हैं और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल देते हैं। ओके बेटा, सो आज हम थोड़ा सा पार्ट ही करेंगे इस चैप्टर का, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ न्यू चैप्टर फॉर यू, और तुम्हें थोड़ा सा समझने में एक बार टाइम लगेगा। जस्ट गो थ्रू दीज पेजेस, 1 or 2 pages आर देयर इन योर बुक, and please see this, how to balance the chemical reaction, what is chemical reaction, what is chemical equation. And if you have to note down in your copy, just make a copy according to this and note down all the definitions. I hope you all have understood this, so please revise this. Thanks, have a nice day.